Hello students, now let's start a new video lecture and the topic is absorption of fats. As compared to absorption of carbohydrates and protein, student, absorption of fats is quite complex mechanism. So let's try to understand with the help of diagram that how absorption of fats occur. So students, the same diagram that we have drawn in the same in the previous lecture. So these are the intestinal epithelial cells. These are the blood capillaries associated with the intestinal epithelium cells, and along with this blood capillary, a lymphatic capillary is there, that is lacteal. Now students, and this is the lumen area students. So our fats are here in the form of triglyceride. I am starting before digestion, that what happened with the fats. So first of all, these triglycerides are there students. These triglycerides, digestion कैसे होता है fats का? They combine with bile salts. So when they combine with bile salts, they convert into emulsified triglycerides. And when they convert into emulsified triglyceride, then they convert into small globules. So that's why the surface area increased. And then pancreatic lipase enzyme and intestinal lipase enzyme acts on them and then break them into fatty acids. Student, one thing it is very important to note down here, that when fats undergo digestion, they never convert all into in simpler form. Some may remain in the form of monoglycerides, even some may remain in the form of diglycerides. So it is very difficult to digest or to break all the complex fats into simpler one. The time that is have with the fats in the intestine. So सारे के सारे फैट सिंपल फॉर्म में नहीं आ पाते, कुछ तो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ मोनोग्लिसराइड के रूप में भी रह जाते हैं. सो फाइनली जो एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास कंटेंट है फैट्स का, जिसमें फैटी एसिड भी है, ग्लिसरॉल तो है ही, साथ में कुछ मोनोग्लिसराइड, इवन कुछ डाइग्लिसराइड भी हो सकते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन these are digested in the form of fatty acids or monoglyceride plus glycerol, then what happen, glycerol so simple diffusion से enter कर जाते हैं into the intestinal epithelial cells. अब बात आती है जो बाकी फैटी एसिड या मोनो फैटी एसिड रह गए, उनका क्या होगा, या मोनोग्लिसराइड्स हैं. तो स्टूडेंट्स, they convert into a special small spherical tiny structures called micelles. और micelles कैसे बनेंगे, when these fatty acid और monoglycerides are surrounded by bile salts. तो यहाँ दोबारा से bile salts का रोल है, पहले इमल्शन में भी रोल था, अब दोबारा से फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड को अगर इंटेस्टिनल एपिथेलियम में जाना है अंदर, सो दे हैव टू कवर्ड बाय द बाइल सॉल्ट्स. और तब जो एक छोटे स्ट्रक्चर बनेंगे, दैट इज टाइनी स्ट्रक्चर्स, द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दैट. सपोज इज द फैटी एसिड, और फैटी एसिड के बाहर इस तरह से यू विल ऑब्जर्व दिस बाइल सॉल्ट्स. नाउ स्टूडेंट्स, what is the need of formation of micelles or micelles? The answer is, student, fatty acids or the digested products of fats are insoluble in water, and they are insoluble in water, so they cannot directly enter into the intestinal epithelium. First of all, they have to convert it into a soluble form. कारण क्या स्टूडेंट, फैट्स इनसॉल्युबल होते हैं, तो इनसॉल्युबल रूप में वो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में नहीं जा पाएंगे, उन्हें सॉल्युबल फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो क्या होता है, व्हेन बाइल सॉल्ट्स सराउंड देम, दे सराउंड देम इन सच अ वे दैट द हाइड्रोफिलिक पार्ट, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा मिसल्स को, फैट्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक है, उन्हें पानी से डर लगता है. जो बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैव टू एंड्स, एक दिस इज सी हियर, बाइल सॉल्ट्स हैव टू एंड, one is this head region and one is this tail region. Now head region is hydrophilic, उसे पानी से डर नहीं लगता, but tail region is hydrophobic. So bile salt कुछ ऐसे कवर करेंगे फैट्स को कि उनके जो हेड है that will be toward outer side and tails are toward the hydrophobic side of the fats. तो ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे स्पेशल, जिसमें
बीच में हाइड्रोफोबिक फैट्स हैं, और उनके आसपास बाहर की तरफ टेल्स हैं हाइड्रोफोबिक, और आउटर साइड पे हाइड्रोफिलिक हेड है। तो बाहर का एरिया अब हाइड्रोफिलिक है, दैट इज वाटर लविंग है। तो ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर बने, स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इनको माइसल्स या मिसल्स कहते हैं। अब ये वाटर सॉल्युबल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, and these structures are now come near to the membrane of the intestinal epithelial cells, and finally they will insert the content that is present inside them into the intestinal epithelial cells. क्या कहा मैंने? पहले माइसिल्स बनेंगे। माइसिल्स क्या हैं? जो ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें फैट्स को कवर करा है बाइल सॉल्ट्स ने। बाइल सॉल्ट्स ने कैसे कवर करा है कि उनके जो टेल है वो अंदर की तरफ है फैट्स की तरफ, और हेड बाहर की तरफ है। तो अब बाहर का जो एरिया है दैट इज हाइड्रोफिलिक, तो अब वो वाटर सॉल्युबल माइक्रोस्कोपिक जो स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर बने दैट इज माइसिल्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएंगे इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स की, और वहां पर फाइनली जो कंटेंट है इनके अंदर फैटी एसिड्स के रूप में, मोनोग्लिसराइड के रूप में भी हो सकता है, उसको इंसर्ट कर देंगे किसमें? इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स में। इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स में स्टूडेंट दोबारा ग्लिसरॉल और ये फैटी एसिड आपस में जुड़ेंगे और दोबारा रीसिंथेसाइज करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। दोबारा रीसिंथेसाइज करेंगे क्या? दोबारा ट्राइग्लिसराइड बनेंगे अंदर जाके। कैसे? जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोबारा जुड़ेंगे, एंड देन दे एंटर इनटू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, और वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? दे विल बी कवर्ड बाय द प्रोटीन, एंड जब वो स्ट्रक्चर बाहर आएंगे, व्हेन द स्ट्रक्चर विल कम आउट, देन दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स क्या है? काइलोमाइक्रोन्स बेसिकली रीसिंथेसाइज्ड ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो दोबारा बने अंदर ट्राइग्लिसराइड, और किसके द्वारा कवर्ड हैं? दे आर वेल कवर्ड बाय द प्रोटीन कोट। अब प्रोटीन कोट के द्वारा जो कवर्ड हो जाते हैं स्टूडेंट, ये भी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, काइलोमाइक्रोन्स। नाउ दीज काइलोमाइक्रोन्स विल not go directly into the blood because their size is not enough small that they can enter into the blood capillary. Size इतना बड़ा है कि वो blood capillary में नहीं जा सकते. So finally they will enter into the lacteal, this lymphatic capillary. Lymphatic capillary में जाएंगे lacteal में. Lacteal का नाम lacteal क्यों पड़ा? क्योंकि लैक्टील के अंदर ये फैट ड्रॉपलेट्स हैं जो कवर्ड है प्रोटीन के द्वारा, और फैट जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। तो लैक्टीन में व्हाइट कलर का फैटी सब्सटेंस है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज लैक्टील। लैक्टील के नाम से लैक्ट फॉर लैक्टोज, दैट इज मिल्क। सो मिल्क की जैसी अपीयरेंस होती है इन लैक्टील्स की। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मिल्की फैट्स भरे हैं। तो याद रखेंगे लैक्टील नाम क्यों पड़ा है इनका। तो फाइनली ये जो फैट्स हैं काइलोमाइक्रोन्स के रूप में, काइलोमाइक्रोन्स क्या है? ये ट्राइग्लिसराइड हैं जो किसके द्वारा कवर है? दैट इज कवर्ड बाय द प्रोटीन कोड। तो ये कहां चले गए? लैक्टील में। लैक्टील की मिल्की अपीयरेंस क्यों है? क्योंकि लैक्टील में क्या पड़ा है? दैट इज ये फैट पड़ा है खूब सारा। अब ये लैक्टील फाइनली इन काइलोमाइक्रोन्स को लेके जाएंगे, दोबारा से ब्लड में थ्रो करेंगे। ब्लड में ब्लड प्लाज्मा क्या करेंगे? वहां पर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो दोबारा उन ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करेंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। देन फाइनली दैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल विल रीच इन द सेल्स फॉर फर्दर यूज by the body. Let's understand this diagram also that I have drawn. In this diagram I have drawn the enlarged section of villi. So these are the villi student, and they are lined by the epithelial cell. Inside the this villi student there are this red color blood capillaries, and in between these blood capillaries are the lymphatic capillary black color, and these are called lacteals. So when micelles will come close to these epithelial cells, micelles क्या हैं? The structure in which fatty acids are there, they are surrounded by bile salt, and they are very tiny structure. So when they come to near to plasma membrane of epithelial cells, they throw their contents into that particular cells, and finally in that particular cells दोबारा से resynthesize करेंगे triglyceride अपने आप को, and then inside the smooth endoplasmic reticulum they are surrounded by protein and turn into a special structure called काइलोमाइक्रोन। और काइलोमाइक्रोन फिर इन एपिथेलियल सेल से ब्लड में नहीं जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि देयर साइज इज क्वाइट लार्ज, सो दे विल एंटर इनटू द लैक्टील, और लैक्टील से होते हुए फाइनली फिर दोबारा ब्लड में जाएंगे, और ब्लड में ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एंजाइम है दे विल ब्रेक देम फाइनली इनटू अगेन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड देन दे रीच इन द बॉडी सेल्स फॉर फर्दर functioning. Let's summarize absorption of fats topic with the help of this flow chart. In this flow chart student we have started with
फैटी एसिड्स और मे बी मोनोग्लिसराइड विच विल कंबाइन विद बाइल सॉल्ट्स, और बाइल सॉल्ट से जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, मिसल्स बनेंगे, और मिसल्स क्या, दे आर स्मॉल स्फेरिकल सॉल्युबल फैट ड्रॉपलेट्स, और मिसल्स फिर फाइनली स्टूडेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेंगे इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स की, एंड देन फाइनली द कंटेंट्स, फैट कंटेंट्स एंटर इनटू द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स। इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर मैं करेक्ट करना चाहूँगा, आई हैव सेड ऑलरेडी इन द प्रीवियस डिस्कशन दैट रीसिंथेसाइज हो जाते हैं, रीसिंथेसाइज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होंगे जाके, वहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि SCR क्या होते हैं, SCR रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, सो वहाँ पर जाके रीसिंथेसिस होना है इनका, किसका, इन फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड का, और ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखना है SCR में जाके रीसिंथेसिस करेंगे, जबकि मैंने पहले कहा था कि बाहर ही रीसिंथेसाइज होते हैं, बाहर नहीं रीसिंथेसाइज होंगे, SER में रीसिंथेसाइज करेंगे, दोबारा से बनेंगे, और फिर SER में रीसिंथेसाइज होने के बाद फाइनली फर्दर प्रोसेसिंग होगी उनके गोल्जी ऑपरेटर्स में, और गोल्जी ऑपरेटर्स में फिर फाइनली वो प्रोटीन से कोट हो जाते हैं, और प्रोटीन से कोट होने पे फिर क्या बन जाएंगे, वो काइलो माइक्रोन। तो थोड़ा सा करेक्ट करेंगे अपने आप को यहाँ पर कि डायरेक्टली बाहर इंटेस्टिनल एपिथेलियम में रीसिंथेसाइज नहीं करेंगे, SER में जाएंगे, वहां रीसिंथेसाइज करेंगे, वहां से निकल के फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए गोल्जी ऑपरेटर्स में जाएंगे, वहां पर प्रोटीन कोटिंग होगी वहां पर, क्योंकि गोल्जी ऑपरेटर्स का काम ही है मॉडिफिकेशन करना, रीसिंथेसाइज करना चीजों को, तो वहां पर फाइनली प्रोटीन कोटिंग के बाद काइलोमाइक्रोन बनेंगे। ये काइलोमाइक्रोन भी बड़े स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स हैं, बट डिफरेंस इज देयर दैट दे आर in triglyceride form and they are covered with protein core, and these then move into the lacteal, not into the blood capillaries, क्योंकि blood capillaries का size जो pores का रहता है that is very small, so they cannot enter into direct blood capillaries। वो lacteal में जाएंगे, lacteal से फिर blood में, और blood से फिर finally पहुंचेंगे body cells में for further functioning। So this is all about student for absorption of fats। Hope you all have understood the topic properly। So take care, thanks।